So, a very good morning to all of you. First of all, I would like to introduce myself in front of you. My name is Moksh Giri, and currently I am working as a software developer in the field of Android development, and I am having almost 1.5 years experience in the same field. And if I talk about my educational qualifications, then I have done my graduation in BVOC software development from Guru Nanak Dev Institute, which is affiliated to IP University. And after that, just after the completion of my graduation, I took admission in MCA, and I have done my MCA from Bhai Parmana Institute, which is affiliated to DSU, Delhi Skill and Entrepreneurship University. And during the fourth semester of my MCA, I just completed MCA last year only, and during the fourth semester of my MCA, I got a job opportunity, an internship opportunity to work as an intern in a company for almost 6 months. And I took that opportunity. That was a campus placement. I took that opportunity, and I joined in that company as a software developer training. And after 6 months of internship, I got the full-time job opportunity there only in the same company, and I got promoted from software developer training to associate software developer. And after that, I worked almost for 6 months, and then during my full-time job opportunity, I decided to resign for due to some reasons, and I joined another company in which currently I am working. I am working in a product-based company in Gurgaon. So basically, currently I got promoted as software developer from associate software developer to software developer. So my first designation was the software developer training. My another second designation, that it is associate software developer, and currently now I am working on the third designation, that is software developer in the field of Android development. So currently, as I already said, that currently I am working as a software developer in the field of Android development, and I am having 1.5 years experience in the core Android development, and my expertise are in Java and Kotlin language, that is the official language of Android development. So that was all about my introduction. So if I come to the topic that I was told that this particular recording and this particular video is required to encourage some juniors of mine, and to encourage some people to who are planning to pursue higher studies. So basically, I would like to give some suggestions to all of you who are planning for MCA, who are planning to take admission in BCA. I would like to give some suggestions to all of you. मेरे साइड से कुछ सजेशंस रहेंगे. सबसे पहला सजेशन तो मेरे लिए यही रहेगा कि अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाह रहे हैं, BCA MCA या किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट ज़रूरी रहेगा कि आपको अगर हायर स्टडीज़ करनी है, किस लिए करनी है. बहुत सारे लोगों का मोटिव ये रहता है कि हमें तो और 2-3 साल मौज करनी है, उसके लिए हम हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं. तो ये पर्सपेक्टिव अगर आपका है तो बिल्कुल गलत है. इसको आप फिर तो एडमिशन मत ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है. कहीं जॉब देखिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी. छोटे स्केल पे कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल जाएगी अगर आपने BCA कर रखा है तो. और बट अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे पैकेज पे, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मुझे मिले, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या फिर जो भी आपकी मनचाही जॉब हो, अगर आप वो पाना चाह रहे हैं हायर स्टडीज़ के थ्रू, तो आप ज़रूर उसके अंदर एडमिशन लीजिएगा. तो कुछ सजेशंस मेरे ये रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता देता हूँ. 1.5 से 2 मिनट का टाइम मुझे दिया गया था, ऑलमोस्ट 3-3.5 मिनट हो गए हैं, तो फटाफट से मैं कुछ सजेशंस आपको दे देता हूँ. सबसे पहला सजेशन तो ये रहेगा, अगर आप एडमिशन लेते हैं, कहीं भी एडमिशन लीजिए आप, MCA BCA किसी भी टेक्निकल फील्ड के अंदर, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला तो आपका जो मोटिव रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए कि मुझे दोनों चीज़ों पे फोकस करना है. दोनों चीज़ों पे इन सेंस कि आपको अपनी एकेडमिक स्टडीज़ पे भी फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी कॉलेज की कैंपस की प्लेसमेंट्स पे भी फोकस करना है. ये गलती मैंने भी करी थी. बहुत सारे लोग करते हैं, क्या गलती करते हैं कि या तो उनका जो मेन फोकस रहता है वो एकेडमिक स्टडीज़ पर ही रहता है, कॉलेज की स्टडीज़ पर ही रहता है, या फिर उनका मेन फोकस जो है हमारा कैंपस की प्लेसमेंट्स पर ही रहता है. बट आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि मैंने ये भी गलती स्टार्टिंग में करी थी. कॉलेज के टाइम पे मेरा मेन फोकस जो था कॉलेज की स्टडीज़ पर ही था. कैंपस प्लेसमेंट्स पे बहुत कम मेरा ध्यान जाता था. उसकी तैयारी में DSA वगैरह सब बहुत कम करता था मैं उस टाइम पे. कोडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको करनी चाहिए. स्टार्टिंग से ही आप लेकर के चलिएगा उसको. तो दोनों चीज़ पे मेन फोकस बना के रखना है. ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आप कॉलेज की स्टडीज़ में ही लगे रहे, कैंपस की प्लेसमेंट आपकी छूट गई, उसकी तैयारी करी नहीं आपने, पता चला कि कॉलेज में तो आप टॉपर बन गए बट कहीं जॉब ही नहीं लगी. और ऐसा भी नहीं करना कि कैंपस प्लेसमेंट में आप इतना बिजी हो गए कि कॉलेज स्टडीज़ को आपने बिल्कुल ही साइड कर दिया. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिन्हें एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर के लोग ही उस प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल रहते हैं. 70% 80% मिनिमम उनको रिक्वायर्ड होती है. उससे कम आपकी कॉलेज में आई हुई है तो आपको प्लेसमेंट के फर्स्ट राउंड में नहीं बैठने देंगे. तो दोनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
सबसे पहला आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला सजेशन मेरा आपके लिए यही रहेगा कि कॉलेज की स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि कॉलेज की स्टडीज़ को बिल्कुल आपको साइड कर दिया और कैंपस की प्लेसमेंट में आप लग गए। और ऐसा भी नहीं करना है कि कैंपस की, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कैंपस की प्लेसमेंट के लिए मतलब अपना कोडिंग वोडिंग पूरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कॉलेज की स्टडीज़ उनकी रह गई, पता चले कि बैक ही आ गई, तो वो सब कुछ आपका रखा का रखा रह जाएगा, जितनी भी कोडिंग की प्रैक्टिस आपने, जितनी भी कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करी है। तो दोनों चीज़ों को लेकर के चलिएगा, पहला सजेशन ये है। उसके बाद अगर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँ आपको, तो देखो कोई भी कॉलेज, किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में चले जाओ, आपको कोई भी खुद से प्लेसमेंट नहीं दिला सकता जब तक आप अपने आप से उस प्लेसमेंट को लेना ना चाहो। मतलब आप कैपेबल नहीं हो तो आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी बड़े से बड़ा कॉलेज या फिर कोई भी बड़े से बड़ा टीचर आपको प्लेस नहीं करवा सकता। आपको खुद से प्लेसमेंट रेडी बनना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो आप किसी भी कंपनी में बैठ जाओ, आप उसको क्रैक कर लोगे। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ नॉलेज देखती हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेजेबल बनना है और उसके कैपेबल बनना है कि हाँ, आप किसी भी जॉब के प्लेसमेंट के इंटरव्यू में कहीं भी बैठो, आप उसको क्रैक कर दो। तो ये तैयारी आपको खुद की रखनी है। और अगर मैं कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, तो अगर आप MCA, देखो बाकी कॉलेज बाकी कोर्सेज़ का मुझे पता नहीं, बट अगर भाई परमानंद के अंदर MCA BCA या बाकी किसी टेक्निकल कोर्स के लिए आप प्लान कर रहे हो उसमें एडमिशन लेने का, तो बेस्ट ऑप्शन है भाई परमानंद। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत सारे टीचर्स आपके सपोर्टिव रहेंगे, सारे टीचर्स आपके कोऑपरेटिव रहेंगे, बट आपको खुद से उस चीज़ के एलिजिबल बनना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि टीचर्स आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा, बस टीचर्स पढ़ा दें, टीचर्स ही मुझे कहीं पे किसी कंपनी में, अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेस करा ले। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। आपको खुद से प्लेसमेंट रेडी बनना पड़ेगा, खुद से अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, आप कहीं भी किसी भी टीचर्स के पास चले जाओ, आप कुछ भी डाउट लेकर के चले जाओ, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशंस का ज़रूर देंगे। तो अगर आप किसी भी टेक्निकल कोर्स के लिए प्लान कर रहे हो MCA में या फिर BCA में एडमिशन लेने का भाई परमानंद कॉलेज से, तो डेफ़िनेटली आप जा सकते हो उसके लिए। वो मेरे साइड से तो पूरा उसके लिए एक तरह से ग्रीन फ्लैग है। आप कुछ भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं और हर तरफ से आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और बस ये कुछ सजेशन मेरे थे जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो गलतियां मैंने करी थी या जो गलतियां बाकी स्टूडेंट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टडीज़ में ही आपका फोकस चला गया या फिर सिर्फ और सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट में चला गया, ये गलती आपको नहीं करनी। एक मेरा छोटा सा सजेशन रहेगा मेरे लिए। तो ये कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो इसी के साथ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख रहा था 7 साढ़े 7 मिनट हो चुके हैं, तो ये कुछ सजेशन मैंने शेयर करे, अपना इंट्रोडक्शन मैंने शेयर करा। बाकी अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहो तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे मोक्ष क्रिया नाम से मेरी आईडी आपको कोई ना कोई म्यूचुअल में मिल ही जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। और बाकी कुछ भी पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिल जाएगा, लिंक्डइन से देख लीजिएगा। कहीं पे भी मेरे को पर्सनली कॉल करके आप जो भी चीज़ें कंफर्म करनी है, क्लियर करनी है, आप पूछ सकते हैं। तो मेरे साइड से बस इतना ही था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, एंड स्पेशल थैंक्स टू द एंटायर प्लेसमेंट टीम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच।